yesterday yesterday we have done balanced diet from human nutrition topic, and today we are going to basically there were two numericals that we had to do yesterday, right? And we will be doing it by before the end of this class today, right? We have to complete those numericals because yes, in your exams numericals are there, so you must know how to solve. The only simple mathematical operations, basic operations are used to solve those numericals. They are not at all difficult. Only few things that you have to care about while doing those numericals, so we will be doing it after the topic covered, as this topic 8.2 is quite lengthy, because in this topic we have to discuss human digestive system. Now when we talk about the human digestive system, there are several things that we would have to discuss, right? We will be discussing different parts of the human digestive system, different organs who are involved, the alimentary canal. Now the type of digestion that is occurring in each part of the digestive system, and what are the enzymes that are involved in each digestion. Now we will be discussing only the digestion of starch, proteins and lipids, because as you must know that vitamins and minerals, if you don't know, this is for your information, that vitamins and minerals, they do not require digestion. They are simply absorbed as they are taken, right? They do not need to be digest. First of all, the first thing, as you can see your syllabus here on the screen, before we proceed to go for this first point, the main regions of the digestive system, I should explain you that why most food must be digested before they can be absorbed. The reason behind is that whatever the type of food that we take in, it is quite complex in structure. The chemical structure of the food that we take in, it's complex, right? So and they are huge in size as well. Their molecular size is quite huge and they cannot pass through the cell membrane. Every nutrient that we want has to go inside the cell, and for this it has to pass through the cell membrane, right? For example, our body stores carbohydrates in the form of glycogen. Let's say that if we eat glycogen, right? For example, if we eat liver, animal liver, cow liver, it has glycogen in it. Now we are intaking glycogen as our body stores the carbohydrate as glycogen, but unfortunately the glycogen that we are taking is of huge size. The molecular size is quite huge. It cannot pass through the cell membrane, right? And since it cannot pass through the cell membrane, so it means that it cannot be absorbed into the blood. It cannot pass through the small intestine into the blood. So that's why first it has to be broken down into smaller size molecule, so that they are of that size which can be passed through, the cell membrane. That's why the molecules need to be digested. Now the carbohydrate, lipids and proteins, they have very large size, right? They are macromolecules. We do not call them, they are not just the molecules, they are the macromolecule, mean large size molecule. So they need to be broken down with the help of enzyme, so that their smaller units can be produced. And that's why biological molecule chapter 4 was important, in order to know that if carbohydrates, we are saying they are made up of a smaller unit like glucose. So all the carbohydrates, whatever the type of carbohydrate we are taking, it has to be broken down in the form of glucose, which is the smallest unit of the carbohydrates, which can easily pass through the cell membrane and it can easily absorb into the bloodstream, right? Similarly, the proteins that we take in, they are of huge size macromolecules. So these proteins have to be digested into simple amino acids, and so that they can be absorbed into our bloodstream. While vitamins and mineral ions and water, these three things of our diet, which we discussed, that balanced diet has seven of these components. Now these out of these seven components, the vitamins,
the mineral ions and water, it does not need to be digested. They have already very small molecular size which can easily pass through the cell membrane, so it can easily absorb into the blood directly, so they do not need digestion at all, right? They are simply absorbed. And rest is the fiber. The seventh one is the fiber. Now fiber is not digested, is because for digestion there is a need. Fiber can be physically digested with our teeth, with the help of our teeth or with the help of our stomach movement, but fiber is not chemically digested. Fiber is made up of cellulose mostly, and cellulose is made up of glucose. Now it is a very complex chains of glucose. Now these cellulose cannot be hydrolyzed, is because our body do not make that enzyme which hydrolyze the cellulose. So that's why it remain undigested. Some of the fiber is used by the bacteria that live in our gut, and they use that cellulose to produce their nutrition for them, and in exchange they make vitamins for us, right? And yesterday I told you that they make vitamin K. So we have covered, I mean, by describing this, we have covered this point that why most food need to be digested. They need to be digested because they are in a big size, they are macromolecule, they cannot be absorbed directly into the blood. So our body need to make them in the smallest unit form so that they can easily be absorbed into the bloodstream. Now, the second part is the identify the main region of digestive system. Right? So I'm about to copy paste here the human digestive the diagram of a human digestive system. Now as you know that whenever we say system, so it means that an organ system consists of multiple organs that have their own function, and collectively they are doing a specific function, right? For example, digestive system's function is to basically do the digestion of the food, the breaking down of your food, the breaking down of the carbohydrate, lipids, protein into the smallest unit. This is the function. Now it cannot be done with the help of single organ, so there are several organs which are involved. Now as you can see that this is basically, if you can see from here, right? From here you can see that from this part we have a mouth, right? And we take the food from our mouth. Now the food cannot be taken in except from nasal cavity. We cannot take, we can only take air through our nasal cavity. The food can only be taken with the help of the oral cavity, which is also called mouth or buccal cavity, right? In this cavity in our mouth, now there are certain organs are there. We have tongue, right? And we have teeth as well, right, which are not mentioned here. We have some glands here as well. We have some salivary gland, a gland is here, salivary gland is also here, like that. Okay. Then there is a basically track food pipe, which is basically that goes down. This is called the esophagus. Now let me tell you, the digestive system consists of first, that you need to remember that your digestive system has consist of an alimentary canal, right? Alimentary canal, which is a continuous tube, ठीक है? From this esophagus till this, it is a continuous tube, right? And in this tube is basically, it's 5 to 6 meters long, right? Total length is about 5 to 6 meters long. Can you imagine that this is such लॉन्ग, बट वी कैन नॉट बेसिकली सी, हमें लगता ही नहीं है कि हमारे अंदर एक चीज़ 5 से 6 मीटर है, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो कॉन्वल्यूटेड हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक समझे आपसे कि बिल्कुल टैंगल सी हुई हुई है, एक जगह पे ट्विस्ट कॉइल्ड हुई हुई है। तो अगर आप उसको खोलेंगे तो यू वुड फाइंड दैट इज़ 5 to 6 मीटर लॉन्ग, ठीक है? और इसके अंदर अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक पाइप है सिंगल। अगर आप देखें तो जहाँ-जहाँ से अगर आप देखते जाएँ तो इसका शेप भी चेंज होता जा रहा है। ना सिर्फ़ ये फ़िज़िकली इसका शेप चेंज है,
बल्कि अंदर से जो इसकी कॉम्पोजिशन है इसके टिश्यूज़ की, वो भी चेंज है। अगर आपको टिश्यूज़ याद हो तो द टाइप ऑफ सेल्स, सेम सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस, ठीक है, वो टिश्यू बनाते हैं। अब एक ऑर्गन के अंदर, अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इट हैज़ मैनी फर्दर ऑर्गन्स, ठीक है, कंसिस्टिंग organs like stomach, intestine, small intestine, large intestine, right? Okay, now these are basically some of the parts of these uh, elementary canal, but we have two other organs which are not a part of this elementary canal, but they are linked with this digestive system, and they are liver and pancreas, right? Liver is not a part of elementary canal, but liver is linked with the elementary canal with the help of a common bile duct, right? And elementary canal is यहाँ से एसोफेगस से लेकर के आप स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइडेड है, और ये कंटिन्यूस ट्यूब है, ठीक है, इट्स अ कंटिन्यूस ट्यूब। और ये कंटिन्यूस ट्यूब जो है वो आपकी, इसके अंदर इनलेट्स भी हैं। इनलेट्स कौन से हैं? दो डक्ट्स हैं जो इसके अंदर आ रही हैं। एक पेनक्रियास से आ रही है, पेनक्रियास इज कनेक्टेड विद दिस एलिमेंट्री कैनाल विद द हेल्प ऑफ अ पेनक्रियाटिक डक्ट। और एक डक्ट है जो लिवर के साथ जो बाइल डक्ट होती है, लिवर के साथ गॉल ब्लडर है जहाँ पे बाइल स्टोर होता है, और बाइल के साथ एक बाइल डक्ट है जो कि यहाँ पे कनेक्ट होती है ड्यूडेनम में। ओके, जस्ट अजान ब्रेक प्लीज सिंह, ठीक है। तो ये दो वाइटल ऑर्गन्स लिंक हैं एक डक्ट के थ्रू, और बाकी जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अक्सर व बेशतर जब इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो उसमें पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की पिक्चर दी हुई होती है। अब इसके अंदर तो लंग्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, उसमें लंग्स नहीं होते, ठीक है। और उस डायग्राम को बेसिकली आपको उसमें आइडेंटिफाई करना होता है, अक्सर आपको आइडेंटिफाई भी करना होता है। कभी कभी आपसे वो डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो लेबल कर देते हैं, आपको उनका फंक्शन बताना होता है, आपको ये बताना होता है कौन सी चीज़ कहाँ और ये क्या है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। दिस इज़ द माउथ, माउथ में टंग है, ठीक है। और मैं आपको साथ साथ में इसके साथ, अगर मैं इसका फंक्शंस भी अगर थोड़े से आप लोगों को बताती जाऊँ, थोड़े थोड़े से, ताकि आप लोग इसको नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। तो फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ दो टर्म्स इस्तेमाल करूँगी, मेरे ख्याल से इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें उन टर्म्स को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। एक होती है फिजिकल डाइजेशन और एक होती है केमिकल डाइजेशन। हमारी बॉडी में ये दोनों डाइजेशंस होते हैं। डाइजेशन के एक्चुअली मीन होते हैं टू ब्रेक डाउन समथिंग इनटू स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर, किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना, राइट। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन जो है वो हमारी दो तरीके से होती है। एक होती है कि आप उस बड़े सी चीज़ को ऐसे ब्रेक डाउन करें कि वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाए, लेकिन उसकी केमिकल नेचर चेंज ना हो। केमिकली वो बिल्कुल भी, अगर वो स्टार्च है तो वो स्टार्च ही रहे। फॉर एग्जांपल, जब हम ब्रेड लेते हैं, हम फ्लैट ब्रेड खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, तो जब हम च्यू करते हैं तो वो रोटी जो होती है वो मज़ीद छोटे पीसेस में चेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन स्टार्च उसका स्टार्च ही रहता है। वो बात अलग है कि हमारे माउथ में देयर इज़ एन केमिकल डाइजेशन भी हो रही होती है, जहाँ से उसकी केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। सो फिज़िकल डाइजेशन बेसिकली, अगर आप इसको लिखेंगे तो फिज़िकल डाइजेशन इज़ बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड particles into small food particles without being chemically changed, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी रॉक को हैमर से ब्रेक करते हैं तो वो उसकी फिज़िकल ब्रेक डाउन है, फिज़िकल डाइजेशन है,
Now what is the chemical digestion? ठीक है, what is the chemical digestion? Now chemical digestion is the enzymatic breakdown. Now the of breakdown of large insoluble molecules into small soluble molecules with the help of enzyme action. ठीक है, तो केमिकल डाइजेशन और फिजिकल डाइजेशन में आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि केमिकल डाइजेशन में आपके एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और वो केमिकली उस चीज़ की जो उसका नेचर होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब स्टार्च का माल्टोज में चेंज हो जाना। ठीक है, स्टार्च के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो उसकी ब्रेक डाउन हो कि वो माल्टोज में ब्रेक डाउन हो जाए, दिस इज़ द केमिकल डाइजेशन, वहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। और ब्रेड जिसके अंदर स्टार्च मौजूद है, ब्रेड का च्युइंग के थ्रू सिर्फ छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाना, छोटी उसमें, ठीक है, ताकि अब हम ये बात लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि वाई फिजिकल डाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज़ द फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर अक्सर कभी कभी आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ फिजिकल डाइजेशन, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि मुझे फंक्शंस आपको बताने थे तो दैट्स वाई इट वाज नीडेड टू बी डिस्कस कि व्हाट इज़ फिजिकल डाइजेशन एंड व्हाट इज़ केमिकल डाइजेशन, एक आइडिया आपके पास मौजूद हो। माउथ का फंक्शन जो होता है ना, इट्स अच्छा, अब हमारा जो बेसिकली जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके अंदर 5 स्टेप होते हैं, जिसके अंदर नंबर 1 जो होता है वो इंजेशन ऑफ फूड होता है। इंजेशन ऑफ फूड इज़ बेसिकली टेकिंग इन ऑन फूड, जो खाना होता है जिसको आप खाते हैं, द टेकिंग इन ऑफ फूड इज़ कॉल्ड इंजेशन। तो आपके माउथ में हो रही होती है, माउथ से आप करते हैं इंजेशन। इंजेशन ऑफ फूड इज़ डन बाय योर माउथ। खाना आप अपने माउथ के ज़रिए खाते हैं, आप अपनी नाक के ज़रिए नहीं खा सकते। ठीक है, अ, 1 मिनट अगर आप लोग प्लीज़ वेट करेंगे, आई एम गेटिंग एन इम्पोर्टेंट कॉल। I had a call. Okay. So what we had been discussing. Now, ingestion of food, the taking of food is done by mouth, right? And this taking in of food. Now, after that, you take the food. Mouth is also involved in the physical digestion. ठीक है, फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो डन बाय माउथ, इज वन नॉट कंप्लीट फिजिकल डाइजेशन, partial physical digestion with the help of our teeth, right? Physical digestion is also occurring with the help of teeth, right, in the mouth. And secondly, chemical digestion also begin here. Now chemical digestion of starch begins, chemical digestion of starch begins in माउथ। ठीक है, तो माउथ में इंजेशन भी हो रही है, फिजिकल डाइजेशन भी हो रही है टीथ से, और केमिकल डाइजेशन भी हो रही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब आप अगर नीचे आएँ तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस हमारा वो स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली जो हमारे दो, आप देखेंगे यहाँ पे इस जगह पे थ्रोट की साइड पे हमारे दो ट्रैक्स जा रहे हैं। एक रेस्पिरेटरी ट्रैक है जो लंग्स में जा रहा है, और एक हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है जो एलिमेंट्री कैनाल में एसोफेगस में जा रहा है, जो गलट में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एपिग्लॉटिस होता है, ये बेसिकली एक ऐसी लिड है जो कि प्रोटेक्ट कर रही होती है, प्रिवेंट कर रही होती है कि जब हम खाना खाएं तो खाना हमारे ट्रैकिया में ना जाए, हमारे विंड पाइप में ना जाए, बल्कि हमारे फूड पाइप में जाए। फूड पाइप और विंड पाइप, दे आर द लेमेंस लैंग्वेज। ठीक है, आपको ये वाली टर्म्स इस्तेमाल नहीं करनी है अपने एग्ज़ाम में। यू शुड ऑलवेज यूज़ द वर्ड एसोफेगस। ठीक है, आपने हमेशा एलिमेंट्री कैनाल, एसोफेगस, आपने ये टर्म्स यूज़ करनी है। नेवर यूज़ द टर्म्स लाइक I would not suggest to use the terms like food pipe or windpipe like that. अगर आप the विंड पाइप की बात कर रहे हैं तो विंड पाइप को आप ट्रैकिया कहेंगे। ठीक है, एनीवे आपका जो फूड जब यहाँ से स्वेलो होता है तो फिर ये जिस ट्यूब में एंटर हो रहा होता है, दिस इज़ द एसोफेगस। एज यू कैन सी दैट कि ये एक लंबी सी ट्यूब है, नैरो सी ट्यूब है। ठीक है, एसोफेगस का
कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, बस इसमें से फूड गुजर के जा रहा होता है, राइट? एसोफेगस, और एसोफेगस का इट डज नॉट हैव कोई स्पेसिफिक नहीं है। फूड passes from mouth to stomach through esophagus। ठीक है। अच्छा, एसोफेगस में केमिकल डाइजेशन कंटिन्यू होती है स्टार्च की, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन डिस्कस कर रहे होंगे, राइट? नेक्स्ट इज stomach. Now stomach is one of the most important organ of the digestive system. It's like a muscular bag। ठीक है। ये इसका शेप इस तरीके का होता है, एक मस्कुलर बैग होता है, हाईली मस्कुलर होता है, सेवरल टाइप्स के टिश्यूज इसके अंदर होते हैं। ये बहुत, वैसे तो आपका ये एसोफेगस भी मस्कुलर इसका कंटेंट होता है, बट स्टिल आपका जो स्टमक होता है, इसके जो मसल्स होते हैं वो ज़्यादा पावर के साथ, ज़्यादा प्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। स्टमक के अंदर फिजिकल डाइजेशन हो रही होती है, क्योंकि स्टमक की जो वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, जिसको चर्निंग मूवमेंट भी कहा जाता है, स्टमक वॉल्स चर्निंग मूवमेंट। ठीक है। तो चर्निंग मूवमेंट of stomach walls are responsible for the physical digestion of further food। खाना हम इतने अच्छे से च्यू करके तो खाते नहीं हैं, तो पूरा खाना हमारा सही तरीके, अब वाई फिजिकल डाइजेशन इंपॉर्टेंट वो हम लेटर ऑन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फिजिकल डाइजेशन पार्शियली हमारे माउथ में होती है, पार्श फिर बाकी बहुत सारी मेजरली फिजिकल डाइजेशन जो हो रही होती है हमारी स्टमक में हो रही होती है, और इसके बाद कुछ थोड़ी सी फैट्स की भी फिजिकल डाइजेशन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही थी। तो फिजिकल डाइजेशन बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टमक वॉल हो रही होती है, राइट? एक इसका फंक्शन ये है। सेकंड, स्टमक का फंक्शन होता है केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। प्रोटीन्स की केमिकल डाइजेशन हो रही होती है। ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं इसके अंदर, स्टमक के अंदर स्टमक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जिनसे बहुत से जिनसे एंजाइम्स रिलीज हो रहे होते हैं, सीक्रीशंस होती हैं। ठीक है। वो हम लेटर ऑन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद अगर आप देखें तो स्टमक से एक आपको ये यू शेप वाला जोन नज़र आएगा, दिस इज कॉल्ड द ड्यूडेनम। ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्वोल्यूटेड से जो ट्यूब नज़र आ रही है आपको, जो नैरो है। ठीक है। नैरो है, और सबसे लंबा पार्ट जो होती है ना, तकरीबन 5 मीटर वगैरह आप कह सकते, 4 to 5 मीटर, सबसे जो लॉन्ग जिसकी लेंथ है वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है। ठीक है। ये नैरो होती है, इट्स नॉट दैट वाइड। इसके अलावा इसके अंदर अ, ठीक है। और ये इसके ना, दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर आपके फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका, ये यू शेप वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड ड्यूडेनम। ठीक है। ड्यूडेनम, राइट। इसके बाद जो मिडल सेक्शन होता है इट्स कॉल्ड जेजेनम, राइट। और इसके बाद जो एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी ये वाला जोन, ठीक है, तो दिस इज द इलियम, right? Middle is the jejunum, and the initial one is the duodenum, and the last one is the ileum। अच्छा, इसके अंदर what you need to remember कि jejunum is not there in our syllabus। ठीक है। the duodenum and ileum, this is what you will remember। ठीक है। मैं यहाँ से मैंने आपको बता दिया है, बट यू विल रिमेंबर स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत सारे फंक्शंस हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन एक तो केमिकल डाइजेशन भी है। ठीक है। केमिकल डाइजेशन हो रही है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की, यानी केमिकल डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज कंप्लीटेड। स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पे केमिकल डाइजेशन कंप्लीट हो रही होती है, जो स्टार्ट माउथ से हुई भी है और स्टमक में भी गई। स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के केमिकल डाइजेशन कंप्लीट हो रही होती है, यानी मॉलिक्यूल्स फुली लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके स्मॉलेस्ट इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में आपके चेंज हो जाते हैं। सेकंड, इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन। प्लीज़ 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यस। अच्छा, सो वी वर लाइक दैट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी केमिकल डाइजेशन कंप्लीट हो गई है। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
Absorption of nutrients is majorly done. All the nutrients are absorbed in small intestine except वाटर. वाटर भी मेजरली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है. सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ वाटर होता है जो कि जो रह जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन से, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है. बाकी जो मेजर जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. अगर फॉर एग्जांपल आपके न्यूट्रिएंट्स लाइक आपके वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स जो इनके स्मॉलेस्ट फॉर्म आए हुए जैसे अमाइनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा. लार्ज इंटेस्टाइन का काम सिर्फ जो थोड़ा बहुत वाटर है उसको एब्जॉर्ब करना है. बाकी लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अ वे फॉर द पैसेज ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है हमारा, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका पैसेज है ताकि वो हमारी बॉडी से जा सके, हमारी बॉडी से रिमूव हो सके, इजेशन हो सके. ठीक है. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेसिकली इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे. लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन, सही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हम कहते हैं, लेकिन मेजर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. ठीक है. एब्जॉर्प्शन ऑफ लेफ्ट वाटर, राइट. और इसके अलावा यू कुड से दैट इट्स अ पैसेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. ठीक है. पैसेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड है जो हमारा, और ये इजेशन भी इसी के थ्रू होती है. इजेशन का मतलब होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड का हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना, राइट. तो अच्छा, अब ये तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स के इसके जोन्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हमने सिर्फ एक ब्रीफली डिस्कशन की है कि इसके ये हैं जिनको हम लेटर वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल. द नेक्स्ट पार्ट इज those organs which are not a part of alimentary canal. ठीक है. इस कंटिन्यूस ट्यूब का वो हिस्सा नहीं है लेकिन वो उससे कनेक्टेड है. वन ऑफ देम इज लिवर. ठीक है. लिवर के वैसे तो अपने बहुत सारे फंक्शन है. लिवर इज़ अ वाइटल ऑर्गन. अगर किसी का लिवर डैमेज हो जाए तो उसकी डेथ हो जाती है. तो वाइटल, हम जब कभी भी किसी के लिए वाइटल ऑर्गन की बात करते हैं तो वाइटल ऑर्गन का मतलब है जिसके बगैर इंसान जिंदा ना रह सके. तो लिवर इज़ दैट ऑर्गन, राइट. सो लिवर के वैसे बहुत सारे फंक्शंस हैं. एंड व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप लोग जहाँ पे भी अपने नोट्स बनाते हैं वहाँ पे आप एक ना एक पेज बना लें, एक सेक्शन बना लें, छोटा सा एक पेज ही रख लें जिसके अंदर फंक्शंस ऑफ लिवर कर लें. हर चैप्टर में हम कोई ना कोई लिवर का फंक्शन पढ़ेंगे, कोई ना कोई लिवर का रोल पढ़ेंगे जिसको आप वहाँ पे लिखते जाएं ताकि at the end of our whole syllabus you will have a list of number of functions that a liver perform. And sometimes we can get an examination question in your P2 7 to 8 mark का भी question आया हुआ है जिसके अंदर liver के functions के बारे में पूछा गया है that why liver's role is important. तो वो जब आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी तो आप सब लिख सकते हैं उसके अंदर. ठीक है. जब हम न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से बात करते हैं तो लिवर के दो रोल्स हैं. ठीक है. फर्स्ट रोल है, एक तो है हमारा सबसे पहले जो इसका फर्स्ट रोल है दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ बाइल. ठीक है. अब बाइल का क्या रोल है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि बाइल एक्चुअली है क्या, क्या रोल है. एक तो ये बाइल बनाता है, राइट. सेकंड इसका फंक्शन है एसिमिलेशन का. एसिमिलेशन हम डिस्कस करेंगे अभी जब मैं आपसे 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन डिस्कस करूँगी पूरे उसके, तो उसके अंदर मैं आपको एसिमिलेशन भी बताऊँगी. फिर जब एसिमिलेशन आप सिंपल, अगर आप अभी आप समझ सकते हैं कि अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूज़ देम इन द सेल, यानी न्यूट्रिएंट्स का आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से अपटेक कि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएँ और इसके बाद वो सेल्स तक जाके उनका यूजेज इन डिफरेंट फॉर्म, लाइक अमाइनो एसिड अपटेक हो रही है तो सेल्स में जाके उनका प्रोटीन्स बनना, ग्लूकोज हो रही है तो ग्लूकोज का अपटेक हो रही है तो उसका ग्लाइकोजन की फॉर्म बन जाना या उसका रेस्पिरेशन में उसका यूज़ होना. इसके अलावा एसिमिलेशन भी काम होता है. ठीक है. और इसके अलावा इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. ठीक है. ग्लूकोज को ग्लाइकोजन यानी हमारी स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में भी चेंज करता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके 3 फंक्शंस हैं लिवर के. बाकी इसके फर्दर फंक्शंस जो हैं वो आप दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या फर्दर मज़ीद फंक्शंस हैं. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो आता है वो आता है पेनक्रियास.
नाउ पेनक्रियास इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, जो कि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी, एक ग्लैंड है बेसिकली। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड वो हम जब हार्मोन्स वगैरह की बात करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड हम उस वक्त डिस्कस करेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दरअसल उनको कहते हैं कि जो डक के साथ वो ग्लैंड्स होते हैं जिनकी सीक्रीशंस होती है, यूजुअली वो एंजाइम्स बना रहे होते हैं, ठीक है। और उन वो डक के ज़रिए किसी एक जगह से दूसरी जगह तक अपना वो सीक्रीशंस को भेज रहे होते हैं, ठीक है। जैसे स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है वो डक्ट के थ्रू जो है वो ग्लैंड्स अपना स्लाइवा जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे वो ग्लैंड्स होते हैं जो डकलेट्स होते हैं, डकलेस होते हैं, और उनके जो डायरेक्ट उनकी सीक्रेशंस होती है वो डायरेक्ट ब्लड में स्ट्रीम में जा रही होती हैं, ठीक है। अ, इसके बाद हम पेनक्रियास का बता रहे थे। पेनक्रियास का जो रोल है इन केस ऑफ डाइजेशन, तो पेनक्रियास का रोल है दैट इट इज़ बेसिकली इन्वॉल्व, इट सीक्रीट्स एंजाइम्स जो कि हमारी केमिकल डाइजेशन करते हैं। तो इट सीक्रीट्स पैनक्रियाटिक एंड पैनक्रियाटिक जूस। अब ये पैनक्रियाटिक जूस जो है बेसिकली इसके अंदर फर्दर क्या होते हैं, तीन एंजाइम्स होते हैं लाइक पेनक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अब ये एंजाइम रिलीज कर रहा होता है और ये बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे फूड की डाइजेशन के लिए। पेनक्रियास का रोल दो तरीके से इम्पोर्टेंट होता है, एक तो इसका हार्मोनल रोल भी होता है और एक इसका एंजाइमेटिक रोल भी होता है, राइट। एंजाइमेटिक रोल तो इसका आता है इन डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। और हार्मोनल रोल रोल जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे जहाँ ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है, ठीक है। तो दिस वे वी हैव डिस्कस दीज, हमने इसको बहुत डिस्कस। अब मैं बताती जाऊँ, दिस इज़ द पेनक्रियास, ये पेनक्रियास है, दिस इज़ द लिवर। अच्छा, लिवर के साथ मैंने यहाँ पर एक और मुझे आपका ऑर्गन लिखना है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द लिवर, ठीक है। वो लिवर के साथ कनेक्टेड होता है, एक खुद छोटा सा ऑर्गन है विच इज़ कॉल्ड गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर एक ऐसा, इट स्टोर्स बाइल। बनाता कौन है? बाइल एक एक खास केमिकल है, और बाइल का फंक्शन क्या है वी विल बी डिस्कसिंग लेटर। लेकिन इसका, लेकिन ये जो है स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। तो इसकी स्टोरेज यूनिट है बेसिकली बाइल का, और ये टेम्परेरी बाइल को स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर की भी हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि जब हम बाइल को डिस्कस करेंगे तो फिर हम गॉल ब्लैडर की भी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि जिन लोगों का गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है उनको कौन से इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ वो फेस करते हैं। नॉर्मल लाइफ तो वो जी सकते हैं, गुजार सकते हैं, बट स्टिल दे फेस दोज इश्यूज़, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। सो दिस इज़ द माउथ, दीज आर द स्लाइवरी ग्लैंड्स। यहाँ पर आपके, ये आपकी टंग है, यहाँ पे आपके टीथ होते हैं, ये एसोफेगस है, दिस इज़ द स्टमक। नाउ दिस पार्ट इज़ द ड्यूडेनम, दिस यू पार्ट, दिस इज़ द जेजुनम एंड दिस इज़ द इलियम, ठीक है। इसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर मैंने आपको डिस्कस नहीं किया था कि लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट्स होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो कोलन है और रेक्टम है, ठीक है। कोलन बेसिकली आपका ये वाला पार्ट है। अच्छा, सीकम जिसके अंदर अपेंडिक्स आता है, राइट, वो ये वाला पार्ट है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। सीकम लिख रही हूँ मैं, बट इट्स नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। कोलन है, कोलन ऐसा इन्वर्टेड यू की तरह इसका शेप है, इफ़ यू कैन सी दैट इन्वर्टेड यू इसका शेप है। ये एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन इसका ये वाइड होता है, ठीक है। ये नैरो थी, ये वाइड होता है, और यहाँ पे से आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पास होता हुआ जा रहा होता है। फिर ये रेक्टम है। ना रेक्टम का काम जो है बेसिकली वो टेम्परेरी अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करना होता है, टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक है। और देन दिस इज़ द एनस जहाँ से आपका अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। मैं बार बार अनडाइजेस्टेड फूड कह रही हूँ इसलिए क्योंकि हम एक्सक्रीशन और इजेशन में फ़र्क है, ठीक है। जब हम इजेशन के ऊपर आएंगे तो वी विल डिस्कस हाउ इजेशन एंड एक्सक्रीशन। आपने भी एक्सक्रीशन का वर्ड सुना होगा, दे आर डिफरेंट, सो यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क, ठीक है।
आज अहद नहीं है, तो आई एम फीलिंग कि देर इज़ नो वन हु इज़ आस्किंग द क्वेश्चन, एंड रियली अच्छा रहता है व्हेन स्टूडेंट आस्क द क्वेश्चन। टीचर को भी अच्छा लग रहा होता है कि वट एवर द क्वेरीज दैट कम इन टू द स्टूडेंट्स माइंड, वरना पता ही नहीं चलता कि आप लोग प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो सो फार व्हाट वी हैव डन, अगर हम इस पॉइंट के अंदर देखें तो हम यहाँ पर जो कर चुके हैं वो हमने मेन रीजन्स, हमने जो हमने जो मेन रीजन्स हैं, राइट, वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देन इसके बाद हमने ये वाली चीज़ भी डिस्कस कर ली है, व्हाई द फूड नीड्स टू बी डाइजेस्टेड। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज़ फिजिकल डाइजेशन, कि इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, केमिकल चेंज नहीं होता। फिर हमने केमिकल डाइजेशन भी डिस्कस कर लिया कि केमिकल डाइजेशन में मॉलिक्यूल्स की केमिकल नेचर चेंज हो रही है, यानी स्टार्च से माल्टोज में चेंज हो रहा है, प्रोटीन से अमाइन एसिड्स में चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, तो दिस इज द केमिकल डाइजेशन। ठीक है, अब हमें ये डिस्कस करना है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल डाइजेशन की जब हम बात करेंगे, तो फिजिकल डाइजेशन क्यों होना ज़रूरी है, वाई फिजिकल डाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि अगर फूड फिजिकली डाइजेस्ट ना हो, सिंपल हम उसको swallow कर लें, तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा डाइजेशन पे। कैन एनी वन ऑफ यू रिप्लाई फॉर दिस क्वेश्चन, why physical digestion is important? Well, physical digestion is important because physical digestion increases the surface area of food molecules। ठीक है, और फूड मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से इट्स एक्सपोजर टू एंजाइम इज इंक्रीज। एंजाइम्स के साथ वो अच्छे से एक्सपोज होता है, एंजाइम एफिशिएंसी बढ़ती है, राइट। सो एंजाइम कैन वर्क ऑन इट प्रॉपरली। एंजाइम का सबस्ट्रेट जो होता है, वो हमारे एंजाइम्स के सबस्ट्रेट ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये इसके सबस्ट्रेट है जिनके ऊपर एंजाइम काम करता है। तो सबस्ट्रेट का जितना ज़्यादा अच्छा सरफेस एरिया होगा, उतना ज़्यादा एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हो सकेगी। ठीक है, तो इट एक्सपोजर टू एंजाइम इज इंक्रीज, making enzyme work on substrate efficiently। ठीक है, और ये क्या करता है, फिजिकल डाइजेशन की वजह से हमारी केमिकल डाइजेशन जो होती है वो एक्सपेडाइट होती है। ठीक है, जल्दी हो रही होती है, स्पीडली हो रही होती है। वरना आप सोचिए, फॉर इसकी एक एग्जांपल है कि अगर आप एक गोश्त का बड़ा सा पीस लें और उसको बॉईल करने रख दें, और उसी 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 साइज़ का एक और गोश्त का पीस लें, आप मीट का पीस लें और उसके छोटे छोटे आप फर्दर पीसेस कर लें, तो कौन सा जो होगा मीट, वो जल्दी बॉईल होके कुक होगा, ऑब्वियसली छोटे छोटे पीसेस वाला। ठीक है, बड़े पीस वाले के अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा उसकी कुकिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो द सेम गोज़ फॉर द सबस्ट्रेट्स एज वेल। जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं कि वो जितने छोटे होंगे, वो उतनी जल्दी तेज़ी के साथ उनकी केमिकल डाइजेशन होगी, राइट। केमिकल डाइजेशन इज speed up by physical digestion, right? So this is an importance of physical digestion। अगर physical digestion ना हो, तो हमारा जो फूड मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो कम्प्लीटली केमिकल डाइजेस्ट नहीं हो सकेंगे। तो इसकी एग्जांपल है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनके दांत नहीं आए हुए थे, व्हाई डू वी गिव देम सेमी सॉलिड्स फूड। जो इन्फेंट्स होते हैं, हम उनको सिर्फ मिल्क दे रहे होते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट डाइजेस्ट सॉलिड फूड। उनके टीथ ही नहीं होते, तो वो उसको च्यू नहीं कर सकते। तो फिजिक और उनका स्टमक भी, उनकी स्टमक की मूवमेंट्स भी जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो उस फूड को फिजिकल डाइजेशन कर सकें। तो उनकी फेसेस में, अगर छोटे बच्चे 6 मंथ के, 8 मंथ के, 9 मंथ्स के जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो खुद से कुछ खा भी लेते हैं, लाइक क्यूकम्बर है, कैरेट है, और वो उसको swallow कर लेते हैं क्योंकि उनके टीथ नहीं होते जिससे वो च्यू कर सकें, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि वो चीज़ केमिकली डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती है।
उतने बड़े साइज की होती है कि एंजाइम उसको ऊपर ऊपर से सिर्फ डाइजेशन हो जाती है, अंदर से वो डाइजेशन हो ही नहीं पाती है। राइट, तो अक्सर उनकी फीसेस में ये सारी चीज़ें जो है वो एज इट इज़ पास आउट हो जाती है। तो मतलब खाना खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो आपके रिलीज ही नहीं हो रहे हैं केमिकल डाइजेशन से। इफ द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट रिलीज विद द हेल्प ऑफ केमिकल डाइजेशन, सो द न्यूट्रिएंट्स विल नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। तो आपके देयर विल बी ऑफ नो यूज ऑफ ईटिंग एनी फूड, आपका खाना खाने का कोई फायदा नहीं हुआ। व्हाई डू वी ईट फूड? वी ईट फूड टू गेट द nutrients, and these nutrients are needed by our body, and if these nutrients are not absorbed into the blood, then why there will be of no use of eating that food. So physical digestion is important, and that's why it is said that you should chew your food efficiently. अपने फूड को हमेशा बहुत अच्छे से च्यू करें, ताकि आपका खाना जो है वो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, एंजाइम्स उसके ऊपर सही से एक्ट करें और उनसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकलें जो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकें। वरना वो खाना अनडाइजेस्टेड फूड के तौर पे आपकी बॉडी से फेसेस की तरह रिमूव हो जाएगा। सो इट विल हैव नो यूज़ इफ़ यू टेक दिस टाइप ऑफ फूड। ठीक है, अगर आप सही से च्यू नहीं करेंगे और फिर आप सारा लोड डाल रहे हैं अपने स्टमक के ऊपर कि स्टमक की मूवमेंट से वो फर्दर मजिद, लेकिन सम टाइम स्टमक कैन नॉट हेल्प विद दैट एज वेल। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही होती है, आपकी स्टमक की मूवमेंट्स भी जो होती हैं वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती हैं। स्टमक उतने अच्छे तरीके से उसकी चर्निंग मूवमेंट्स नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से आपका फूड फर्दर वहाँ पे भी अच्छा फिजिकल डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता। तो जब तक यू हैव टीथ, यू शुड च्यू योर फूड एफिशिएंटली, सो दैट योर फूड surface area may increase, and this will increase the rate of chemical digestion। ठीक है। uh, I hope that you people have understood this importance of physical digestion. Now next part, we have done this with as well। ठीक है। Now identify the type of human teeth। We have only 8 minutes left। ठीक है, हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। अब फिजिकल डाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए? टीथ चाहिए माउथ में। ठीक है, तो हमें हमारे सिलेबस में है, हमें टीथ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि मैमल्स के पास 4 तरह के टीथ होते हैं। ठीक है, तो दीज 4 टाइप ऑफ टीथ वी हैव टू स्टडी। ठीक है, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। राइट, इनके नाम के साथ आपको इनका फंक्शन पता होना चाहिए, इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मैं यहाँ आपको 4 टाइप्स ऑफ टीथ की पिक्चर्स आपके साथ शो करती हूँ। ठीक है, अब ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। ये आपसे इंडिविजुअल टूथ भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आपके साथ जॉ भी शेयर कर सकते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना हो, आपके साथ साइड व्यू भी शेयर कर सकते हैं। तो आपको दोनों तरह में आपको उसको करना आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये आपका जॉ है, ठीक है, इफ़ दिस इज़ द अपर जॉ, अगर हम देखें, इसमें आपको टूथ आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। सेकेंडली मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आपको साइड व्यू अगर आपका शेयर किया जाएगा, तो साइड व्यू से अगर आपसे वो पूछ लें कि आइडेंटिफाई, अक्सर P1 के अंदर क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर आपको टूथ आइडेंटिफाई करना होता है और उसका फंक्शन आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आप इसके अंदर देखें, जो फ्रंट के 4 टीथ होते हैं अपर और लोअर जॉ में। अच्छा, आपके जो जॉज हैं वो बेसिकली आपकी स्केलेटन की वो हड्डी है जिसके अंदर आपके टीथ, उसके अंदर गम्स होते हैं और आपके टीथ जो होते हैं गम्स के अंदर एम्बेड होते हैं। ठीक है, हम टीथ का टूथ का इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली टुमारो। ठीक है, तो फ्रंट के जो 4 टीथ हैं ऊपर नीचे, दे आर कॉल्ड इंसाइजर्स। ठीक है, ये फ्रंट के 4 टीथ आर कॉल्ड इंसाइजर्स। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास साइड में 2 टीथ अगर आप देखेंगे, ये वाले और ये वाले, हमारे ये इतने शार्प नहीं होते, लेकिन अगर हम कार्निवोर्स मैमल के देखें, जैसे कि डॉग्स हैं, बेयर्स हैं, लायंस हैं, तो इनके जो कैनाइन्स होते हैं वो इनके मुंह से बाहर आ रहे होते हैं और बहुत शार्प होते हैं। ठीक है, वो इसका फंक्शन है, बिकॉज दीज कैनाइन्स आर इन्वॉल्व। मैं फंक्शन भी बताते जाऊँ, दैट दीज इंसाइजर्स आर बेसिकली, इनका फंक्शन होता है टू टेक द बाइट, टू बाइट द फूड, टू कट द फूड, फूड की कटिंग के लिए, सिर्फ कटिंग के लिए। ठीक है, और कैनाइन्स का भी यही काम है, लेकिन कैनाइन्स जो होते हैं दे आर शार्प, और इनका अगर आप शेप देखें तो ये रिच शेप है, ये चिजल शेप है, फ्लैट होते हैं। ठीक है, और
जो कैनाइन्स होते हैं वो थोड़े से शार्प होते हैं। जो लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं उनके कैनाइन्स आप देखेंगे थोड़े ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं, दिस शोज दैट दे ईट मीट अ लॉट, राइट। तो कैनाइन्स का काम जो होता है वो बेसिकली हार्ड फूड जो होता है उसकी बाइटिंग के लिए दे आर यूज्ड, ठीक है। और मैमल्स के अंदर जो कार्निवोर मैमल्स होते हैं वो तो टीयरिंग के लिए, वो तो कच्चा गोश्त खा रहे होते हैं, तो उसको उनको मीट को गोश्त को टीयर करना होता है, तो वो टीयरिंग ऑफ स्किन वगैरह के लिए दे हैव कैनाइन। कैनाइन नहीं होंगे तो वो कैसे कच्चा गोश्त खाएंगे, कैसे वो प्रे करेंगे, कैसे हंट करेंगे, ठीक है। देन कम्स, अगर आपको नजर आए इसके बाद जो हमारे इस तरह के जो दो टीथ इस तरफ और दो टीथ टूथ इस तरफ नजर आ रहे हैं, दीज आर द प्री मोलर्स। प्री मोलर्स जो होते हैं, अच्छा मैं आपको साथ में इनका इंडिविजुअल टूथ वाला स्ट्रक्चर भी दिखा दूं ताकि आप साथ साथ में इसको फॉलो करते जाएं कि ये अगर हम इसको अलग अलग इंडिविजुअली देखें तो हाउ डू दे लुक एंड हाउ डू दे अपेयर, सो दैट यू में डिफरेंशिएट बिटवीन देम एज वेल, ठीक है। जैसे कि राइट, तो अगर आप ये देखें कि ये आपका इंसाइजर है, तो ये इंसाइजर जो है आप देख रहे हैं कि चिजल शेप है, फ्लैट है, इसकी सिंपल एक रूट है। ये जो रूट होती है ये आपकी गम्स के अंदर होती है, ठीक है। ये अगर आप कैनाइंस देखें तो हल्के से शार्प है, ठीक है, और पॉइंटेड होते हैं, इसकी भी एक ही रूट होती है। प्री मोलर्स की अगर आप बात करें तो इनके दो पॉइंटेड कस्प होते हैं। कस्प जो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको दो नज़र आएंगी, एक ये है और एक ये है, दो इसके कस्प हैं, राइट। और नीचे से अगर हम इसको देखें तो इसकी आपको साइड पे एक रूट नज़र आ रही है, हैव टू पॉइंट, वन और टू रूट्स हो सकती हैं, ठीक है। प्री मोलर्स का काम जो होता है वो ग्राइंडिंग ऑफ फूड होता है। इंसाइजर्स और कैनाइंस कटिंग का काम कर रहे होते हैं, बाइटिंग का काम करते हैं, लेकिन प्री मोलर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। व्हेनेवर यू आर आस्क्ड to write down the function of premolars and molars, always write the correct terms, that is chewing and grinding, ठीक है। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग इसका आ जाता है कि फूड को च्यू और ग्राइंड कर रहे थे। असल में जो फूड का सरफेस एरिया है वो ये दोनों फूड बढ़ा रहे होते हैं, और जिनके जो उनकी मोलर्स या प्री मोलर्स जो होते हैं जिनके कैविटीज़ की वजह से लॉस हो जाता है, उनसे च्यू नहीं हो पाता फूड। फिर वही वाली बात है, जब च्यू नहीं होगा तो फिजिकल डाइजेशन अच्छी नहीं है, तो केमिकल डाइजेशन अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो आपके प्री मोलर्स जो हैं वो ये वाले आपके प्री मोलर्स हैं। देन कम्स आपके मोलर, ठीक है। मोलर आप देखेंगे ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा ब्रॉड है, और इस तरफ अगर आप देखें मोलर्स को तो यहाँ पे मोलर्स की आपको 2 to 3 रूट्स नज़र आएंगी, ठीक है। इनकी रूट्स होती हैं 2 to 3 रूट्स, एंड इसके अलावा ये इनके 4 to 5 कस्प होते हैं, ठीक है। कस्प इनके ऐसे जिन, इफ़ यू कैन सी दैट 1 2 3 4 कस्प होते हैं, चार कोने आप कह सकते हैं। आपकी इसको उर्दू में हम दाढ़ कह रहे होते हैं, राइट। एंड देन इन दोनों का फंक्शन बोथ सेम है, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड है, और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी तो रूट्स आपको खास नज़र आ रही है, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। इस फॉर्म में भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और इस वाली फॉर्म में भी। अगर आपको ऐसे दिखाई दे तो आगे के फ्रंट टीथ, दीज आर द इंसाइजर्स, दीज आर द, सॉरी यहाँ पे ये वाला कैनाइन है, देन दीज आर द प्री मोलर्स, और फिर ये आपके ये सारे मोलर्स हैं। इसके बाद कभी कभी किसी के विजडम टूथ भी निकलते हैं जो कि मोलर ही होता है, हर किसी में नहीं निकल रहा होता, निकलता है, ये एक एक्स्ट्रा मोलर टूथ होता है, ठीक है। तो दीज टीथ आर इम्पोर्टेंट। इसका टूथ का हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स इंशाल्लाह ताला विल बी डूइंग इट टुमारो, राइट। जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अक्सर P1 के अंदर उसकी, आई थिंक वी हैव 3 minutes ना, तो वी कैन डिस्कस रादर। आपको उसका फंक्शन भी थोड़ा पता होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है टूथ के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कि आपको उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कभी कभी जो है वो P1 के क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है जिसमें आपको आइडेंटिफाई इसको करना आना चाहिए। लेट मी शेयर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टूथ विथ यू, ठीक है। नाउ दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। अगर आप इस टूथ के अंदर देखें तो जो गम से ऊपर का हिस्सा है दिस इज कॉल्ड द टूथ क्राउन, ठीक है, और नीचे का हिस्सा रूट कहलाता है। अब टूथ क्राउन ये गम्स है आपके। टूथ क्राउन के अंदर जो हमें वाइट टीथ नजर आ रहे होते हैं, जो ऊपर जो वाइट चीज नजर आ रही होती है, इज एक्चुअली द एनिमल। एनिमल हमारा वो चीज़ है जो कि हमारी बॉडी का वो सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी सबसे टफ अगर कोई चीज़ बनाती है ना, बोन से भी ज़्यादा टफ, तो वो एनिमल है।
और एनिमल को एसिड के अलावा कोई हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता, कोई इसको तोड़ नहीं सकता, कोई इसको ख़राब नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्पॉयलेज जो हो रही होती है हमारे टूथ में, वो इन शुगरी फूड्स की वजह से हो रही थी जो कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल जो होता है वो सबसे टफ चीज़ है, यानी कि आपके इंटरनली जो टूथ का स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने एक हार्ड कवरिंग दी है, विच इज़ द एनिमल। एनिमल के नीचे डेंटिन होता है, बट डेंटिन इज ऑल्सो वेरी टफ एंड हार्ड, बट इट्स नॉट एज हार्ड एंड एज टफ लाइक एनिमल। डेंटिन के नीचे अगर हम देखें तो आपको दिस इज कॉल्ड द पल्प कैविटी। पल्प कैविटी बेसिकली हमारे लिविंग टिश्यूज होते हैं। लिविंग टिश्यूज का मतलब ये है कि यहाँ तक तो अगर आप दांत के ऊपर कुछ मारेंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे, वो आपको ठंडा गर्म नहीं लगेगा। जहाँ आपको टूथ में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाए, इट मीन्स दैट कि आपकी ये एनिमल और डेंटिन कैविटी जो है वो कहीं ना कहीं से डैमेज हो चुकी है, उसमें कोई कैविटी आ चुकी है जिसकी वजह से आपके यहाँ पे जो आपके लिविंग टिश्यूज़ हैं वहाँ तक वो एसिड या वो चीज़ पहुँच रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ठंडा गर्म लगता है, पेन होता है। यहाँ पे हमारे नर्व्स भी होती हैं, पेन नर्व्स भी होती हैं। इसके अलावा नर्व रिसेप्टर्स होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन ग्लूकोज पहुंचा रही होती है, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स लेके जा रही होती हैं। तो दिस इज़ द पल्प कैविटी, दिस इज दीज आर द लिविंग टिश्यूज। ये जो हमारे टूथ अटैच होते हैं ये सीमेंट के थ्रू अटैच होते हैं। एक सीमेंट एक टाइप का मटेरियल है जिसको हम सीमेंट कहते हैं, जिसके साथ अटैच होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सीमेंट वीक होता जाता है, जब भी ज़्यादा उम्र जिसकी हो जाती है उनके टीथ खुद ब खुद हिल के आहिस्ता आहिस्ता करके निकल के गिर जाते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे नर्व एंडिंग्स, यू कैन सी दैट नर्व एंडिंग्स है। ये नर्व एंडिंग्स बेसिकली हमारी कनेक्टेड होती है हमारी ब्रेन के साथ, और इसके अलावा यहाँ से ये लेके जा रही होती है, पेन रिसेप्टर्स होते हैं जो आपको दर्द महसूस हो रहा होता है। तो जब तक ये एनिमल और डेंटिन आपका इंटेक्ट है, जब तक बैक्टीरिया ने इसके ऊपर हमला नहीं किया है, राइट, तब तक आपका जो आपका टूथ, आप जब तक आपका टूथ जो है वो आपको कोई पेन नहीं होगा। बट व्हेन दिस एनिमल एंड डेंटिन इज डैमेज बाय द बैक्टीरिया, क्योंकि शुगरी फूड्स जो होते हैं जब हम खाते हैं सिंपल शुगर्स, तो बैक्टीरिया बेसिकली इनको यूज़ करते हैं। आपके माउथ में यू हैव बैक्टीरिया, सो दीज बैक्टीरिया यूजेस दीज sugars and make the acid. Now this acid basically, दिस एसिड बेसिकली इसको यहाँ पे ये डैमेज करना शुरू कर देता है एनिमल को, स्लोली ग्रेजुअली। एंड एनिमल डैमेज हो रहा है, फिर डेंटिन डैमेज हो रहा है, तो जो कैविटी आ रही होती है ना वो इस डैमेज की वजह से आ रही होती है। तो दैट्स वाई इट इज़ रिकमेंडेड कि एक तो हम सिंपल शुगर्स का इतना इस्तेमाल ना करें, और अगर खाते हैं कैंडीज चॉकलेट्स वगैरह तो फ़ौरन वी शुड ब्रश आवर टीथ, ताकि जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो अल्कलाइन होता है। तो वो अल्कलाइन जो है वो उस एसिडिटी को क्या करेगा, उसको न्यूट्रल कर देगा, और हमारा जो टूथ डैमेज होगा उसको प्रिवेंट कर देगा। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। टूथ डिके वाज वन अपॉन few years back it was the part of your syllabus, it's now no more a part of your syllabus, but we must know how tooth decay occurs, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अच्छा विद दिस लेट मी टेल यू वी हैव कवर्ड these points as well. Identify the type of human teeth and structure of human teeth, right? Now, importance of human teeth, we have also discussed that these teeth are important for the physical digestion. They cut the food, they grind and chew the food for increasing in surface area. So teeth have a very important role in the initial physical digestion of the food in our mouth. So this completes all these 8 syllabus content points that we discussed today. Inshallah Ta'ala, we'll be continuing with the other points from tomorrow. Till then, take care. Allah Hafiz.